بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہندوستان جلال الدین اکبر، تاریخ کا بہت بڑا نام۔ اسلم راہی صاحب نے شہنشاہ ہندوستان کی تاریخ کو کتابی شکل دے کر مسلم امہ کو مسلمانوں کی یاد دلائی ہے۔ جلال الدین اکبر بہت بڑا نام تھا، جس نے کم عمری میں ہی میدان جنگ میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے اور پھر ہندوستان کا شہنشاہ کہلایا۔ جلال الدین اکبر نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی رعایا، چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ زندگی میں کئی اس نے نشیب و فراز دیکھے، مشکل سے مشکل گھڑیاں دیکھی، لیکن جلال الدین محمد اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں شہنشاہ ہندوستان کی کہانی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 2، جلال الدین محمد اکبر، شہنشاہ ہندوستان۔ تو اتنی دیر تک ہیمو بقال دلی پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم کر سکتا تھا۔ ان حالات میں بیرم خان اور اکبر نے آگرہ کے اپنے حاکم سکندر خان کو دلی کے اپنے حاکم تریدی بیگ اور سانبل کے حکمران قلی خان شبیانی کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ ہیمو بقال کا مقابلہ کرے اور اسے کسی بھی صورت دلی پر قبضہ نہ کرنے دے۔ اس دوران اکبر اور بیرم خان کو ایک اور بری خبر ملی۔ اس وقت ہمایوں کے سارے اہل خانہ اور رشتہ دار کابل میں قیام کیے ہوئے تھے۔ بری خبر یہ آئی کہ بدخشاں کے حاکم سلیمان مرزا نے اکبر سے بغاوت کر کے کابل کا رخ کیا تھا اور کابل کا محاصرہ کر کے وہ اسے فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور بیرم خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ کابل کے دفاع کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کے پہنچنے کی وجہ سے بدخشاں کا حاکم سلیمان خان تو واپس بدخشاں چلا گیا، جبکہ کابل میں جو اکبر کے عزیز و اقارب تھے انہیں اکبر نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسری طرف سکندر خان، تریدی بیگ اور قلی خان کے پاس کوئی بڑے لشکر نہیں تھے۔ وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی، جس میں ہیمو بقال نے مغلوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو منتشر کر دیا۔ اس طرح ہیمو بقال آگے بڑھا اور دلی پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دلی پر قبضہ کرنے کے بعد ہیمو بقال نے بکر ماجید کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کے سکے بھی جاری کر دیے۔ اس دوران اکبر کے سالاروں میں سے تریدی بیگ و سکندر خان اور قلی خان شبیانی اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ ہند کے مقام پر جمع ہو گئے۔ دلی کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بیرم خان اور اکبر کو اس وقت ہوئی جب وہ جلندھر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ سرہند کا رخ کیا۔ سرہند کے مقام پر جب بیرم خان اکبر پہنچے تو تب تریدی بیگ خان نے اکبر اور بیرم خان کو مشورہ دیا کہ وہ ہیمو بقال کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لہذا اس سے ٹکرانا اپنے لشکریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ فی الحال دلی کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہمیں اپنا مال و اسباب سمیٹ کر اور لشکر کو لے کر کابل کا رخ کرنا چاہیے۔ تریدی بیگ چونکہ بار بار یہی مشورہ دیتا تھا کہ ہیمو بقال سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، کابل چلے جانا چاہیے، اسے بیرم خان کو یہ خدشہ ہوا کہ اس کے ان مشوروں کی وجہ سے لشکر کے اندر بدلی پھیل جائے گی اور وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہیں کریں گے، لہذا بیرم خان نے تریدی بیگ خان کا قتل کر دیا۔ سرہند کے مقام پر جمع ہونے کے بعد اکبر خان اور بیرم خان نے اپنے سارے لشکر کو جمع کیا اور ہیمو بقال کا مقابلہ کرنے کے لیے دلی کا رخ کیا۔ اپنے ہر اول لشکر کا کماندار اکبر نے قلی خان شبیانی کو مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف ہیمو نے بھی توپ خانے پر مشتمل اپنے لشکر کا ایک حصہ اکبر کی طرف روانہ کیا۔ اس طرح اکبر کے ہر اول لشکر اور ہیمو بقال کے اس لشکر کے حصے کے درمیان جنگ ہوئی۔ اکبر کے ہر اول لشکر کی کمانداری قلی خان کر رہا تھا۔ اس نے ہیمو بقال کے لشکر پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اسے نقصان پہنچایا
बल्कि उससे तोपखाना भी छीन लिया। इस तरह अकबर और बैरम खान अपने लश्कर को लेकर 5 नवंबर 1956 को पानीपत के तरीखी मैदान में दाखिल हुए। दूसरी तरफ हेमू बकाल भी अपने लश्कर को लेकर पानीपत के मैदान में दाखिल हो गया। हेमू बकाल ने लगभग 1500 हाथी अपने लश्कर के आगे रखे हुए थे। दोनों लश्कर पानीपत के मैदान में एक दूसरे से टकराए और होलनाक जंग शुरू हो गई। हेमू बकाल की बदकिस्मती थी कि जिस वक्त जंग अपने रूज पर थी, एक मुसलमान लश्करी का तीर हेमू की आंख के करीब लगा और उसके सर के पिछले हिस्से से निकल गया। गो अकबर और बैरम खान के लश्कर के मुकाबले में हेमू बकाल के लश्कर की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जब हेमू बकाल ज़ख्मी हुआ तो जिस हाथी पर सवार था उस हाथी के महावत ने हेमू बकाल को इसके ज़ख्मी होने की वजह से मैदान जंग से पीछे ले जाना चाहा, लेकिन हेमू बकाल और उसके महावत पर टूट पड़ा। हेमू बकाल उसके महावत पर टूट पड़ा और उसने हेमू बकाल को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने हेमू बकाल का सर कलम कर दिया। इस तरह पानीपत के मैदान में हेमू बकाल को बदतरीन शिकस्त हुई और एक फातह की हैसियत से अकबर और बैरम खान दिल्ली में दाखिल हुए। हेमू बकाल को पकड़ने वाला शाह कुली खान था। हेमू बकाल के लश्करी जब मैदान जंग से भागे तो अकबर ने अपने एक सालार सिकंदर खां को इनका ताक़ब करने के लिए रवाना किया। सिकंदर खां ने दूर ताक़ब करके इनकी तादाद मज़ीद कम की। लश्कर में हेमू बकाल की बीवी भी शामिल थी। वो किसी न किसी तरह बचती बचाती हुई मेवात के इलाके की तरफ भाग गई। अब अकबर ने एक तरह से अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम कर लिया था, लेकिन इस दौरान बदकिस्मती से अकबर और उसके सिपा सलार और अतालीक बैरम खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। बैरम खान बुनियादी तौर पर बदख्शां शहर का रहने वाला था। उसने अकबर के पास हमायूं के वक्त से ही नहत वफादारी से मुग़लों का साथ दिया था। उसने अपनी सलाहियतों और दयानतदारी के बलबूते पर जो बुलंद मुकाम हासिल किया था वो तारीख़ में बहुत कम लोगों के लिए होता है। पानीपत की जंग में हेमू बकाल के ख़िलाफ़ फतह हासिल करने के बाद जब अकबर के पांव जम गए तब कुछ लोगों ने बैरम खान के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिए। इसी दौरान बैरम खान से भी कुछ गलतियां हुई और इन गलतियों को दुश्मनों और मुखालफों ने इस कदर उभारा कि अकबर और बैरम खान के दरमियान इख्तलाफात अरूज पर पहुंचा दिए। बैरम खान से पहली गलती ये हुई कि उसने अकबर की इजाज़त के बगैर दिल्ली के हाकिम त्रेदी बेग को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसने सिर्फ ये मशवरा दिया था कि हेमू बकाल का मुकाबला करने के बजाय काबुल का रुख करना चाहिए। बैरम खान से दूसरी गलती ये हुई कि एक रोज़ बैरम अकबर के एक सलार पीर मोहम्मद के घर उसे मिलने के लिए गया। पीर मोहम्मद बैरम के मतहत काम कर चुका था। उससे मुलाकात करने के लिए बैरम खान को थोड़ी देर उसके दरवाजे पर इंतज़ार करना पड़ा। बैरम खान ने उसे अपनी तौहीन करार दिया था और अकबर से मशवरा किए बगैर उसने पीर मोहम्मद को कैद खाना में ठोंस कर रख दिया। बैरम खान से तीसरी गलती ये हुई कि उसने अपने एक जानने वाले ईरानी शेख गुदाई को अकबर से मशवरा किए बगैर सल्तनत में एक इंतहाई अहम ओहदा अनायत कर दिया। उसकी इस हरकत ने भी उसके आसदों को अकबर के कान भरने का मौका फराहम किया। बैरम खान ने इन्हीं दिनों चौथी गलती ये की कि शाही महल के बहुत से मुलाजम भी उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। इसलिए बैरम खान ने अपने पसंदीदा अफराद को नवाजना शुरू कर दिया था। वो बादशाह के मुलाजमों को मामूली से मामूली बात पर भी सजाएं दे देता, लेकिन उसके अपने मुलाजमीन बड़े से बड़ा भी जुर्म करते तो इन्हें माफ़ कर दिया जाता। बैरम खान को जब इन हालात की खबर हुई तो उसके साथियों ने बैरम को मशवरा दिया कि उसके ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें तैयार की जा रही हैं, लिहाजा वो खुद भी हरकत में आए और अकबर को कत्ल कर दे, लेकिन बैरम खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अकबर के दिल में बैरम खान के ख़िलाफ़ शुबहात अपने अरूज पर पहुंच चुके थे। जिन दिनों बैरम खान लश्कर के एक हिस्से के साथ पंजाब में मुकीम था, अकबर ने अपने दूसरे सलार पीर मोहम्मद को एक लश्कर देकर बैरम खान की तरफ रवाना किया। यह वही पीर मोहम्मद था जिसे बैरम खान ने ज़िंदान में डाल दिया था। बैरम खान ने उसे अपनी तौहीन समझा कि पीर मोहम्मद को इसकी तरफ रवाना किया जा रहा है ताकि वो इस पर निगाह रखे और उसे अपना मतहत बनाए। इस बिना पर बैरम खान ने अपना लश्कर लेकर जलिंदर के करीब पहुंचा और पीर मोहम्मद और बैरम खान के दरमियान होलनाक जंग हुई, जिसमें बैरम खान को शिकस्त हुई।
बैरम खां को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने उसे माफ़ कर दिया, उसे शानदार खुलत पेश की। उसके बाद उसे मक्का जाने की इजाज़त दे दी। मक्का जाने के लिए बैरम खान जब रवाना हुआ तो रास्ते में एक अफ़गानी ने उस पर हमलावर होकर उसे कत्ल कर दिया। उसकी बीवी सलमा बेगम और उसके 4 साला बेटे अब्दुल रहीम खान को अकबर के पास पहुंचा दिया गया। सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली, जबकि 4 साला अब्दुल रहीम खान की परवरिश शाही महल में हुई। यही अब्दुल रहीम आगे चलकर शहनशाह अकबर के पसंदीदा लोगों में शामिल हुआ और उसे खाने खाना का खिताब दिया गया। अकबर और बैरम खां के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में एक शख्स महम और उसकी बीवी और बेटे आदम खान ने बड़ा किरदार अदा किया था। आदम खान अकबर की दाई का बेटा था और अकबर की रज़ाई माँ भी थी, और रज़ाई माँ को अतका कहते हैं और रज़ाई भाई को कद कहकर मुखातब करते हैं। इस तरह बैरम खां का खात्मा कराने के बाद आदम खान ने चापलूसी से काम लेते हुए अकबर की निगाहों में इज़्ज़त व एहतराम हासिल कर लिया था। बैरम खां के मरने के बाद जो सबसे बड़ा हादसा पेश आया वो ये कि ग्वालियर के हाकिम आदिल शाह के बेटे शेर खान ने अफ़गानों की अजमत को बहाल करने की कोशिश की। ये चूँकि शेर शाह सूरी के रिश्तेदारों में से था, लिहाजा ये शेर खान 40,000 सवारों के साथ जूनपुर शहर की तरफ बढ़ा ताकि मुग़लों से वो शहर छीनकर उस पर कब्ज़ा कर ले। अकबर को जब पता चला कि शेर खान 40,000 के लश्कर के साथ जून पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तो उसने अपने एक अजबक सलार खान ज़मान को शेर खान का मुकाबला करने के लिए रवाना किया। खान ज़मान इंतहा दर्जा का बहादुर, शुजा और जिंदा दिल नौजवान था। गो उसके पास सिर्फ 12,000 का एक लश्कर था, लेकिन वो शेर खान के 40,000 लश्कर के सामने जम गया और दोनों लश्करों के दरमियान औलनाक जंग हुई। इस जंग में हैरत अंगेज़ तौर पर खान ज़मान ने अपने 12,000 लश्कर के साथ शेर खान के 40,000 लश्करियों को बदतरीन शिकस्त दी। इस मार्का में खान ज़मान का भाई बहादुर खान भी इसके साथ था और उसने भी इस मार्का में बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। इन दोनों भाइयों ने जब सिर्फ 12,000 के लश्कर के साथ 40,000 के लश्कर को शिकस्त दी तो लोगों की निगाहों में दोनों भाइयों की इज्जत और उनका एहतराम दो चंद हो गया था। ज़मान खान बहादुर खान दोनों भाइयों की इस कामयाब मुहिम के बाद अकबर आगरा शहर से निकलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में हाज़िरी देने के लिए रवाना हुआ। जब वो जयपुर के इलाके सांबल में पहुंचा तो वहाँ के राजा बहारी मिल ने अकबर का बेहतरीन अंदाज में न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि राजा बहारी मिल ने उसे ख्वाहिश का इजहार किया कि अकबर उसकी हसीन व खूबसूरत बेटी जोधाबाई से शादी कर ले। अकबर ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। पहले वो अजमेर गया। वापसी पर सांबल के मुकाम पर राजा बहारी मल ने अपनी खूबसूरत बेटी जोधाबाई को अकबर के साथ ब्याह दिया। राजा बहारी मल की बेटी से शादी करने के बाद अकबर ने राजा बहारी मल को एक सलार की हैसियत से अपने लश्कर में शामिल कर लिया और उसके बेटे भगवान दास को भी सलार का ओहदा दे दिया। इसके अलावा भगवान दास के भतीजे और मुंह बोले बेटे राजा खान सिंह को भी अकबर ने अपने लश्कर में आला ओहदे पर फैज़ कर दिया था। सांबल के राजा बहारी मल की बेटी ने अकबर का बेटा शहजादा सलीम पैदा हुआ, जो बाद में जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का शहनशाह बना। और जहांगीर की शादी भी राजा भगवान दास की बेटी से उस वक़्त हुई थी जब जहांगीर की उम्र सिर्फ 15 बरस थी। अब अकबर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सल्तनत को वसअत देने का तहिया कर लिया था। इससे पहले कि उसने मेरठ के किले को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहा। मेरठ नाम का यह किला रियासत जोधपुर में शामिल था और यहाँ का राजा मालदीव हुक्मरान था। उसके मतहत उसके 2 बेहतरीन सलार थे जो जंग का बेहतरीन तजर्बा रखते थे। इनमें से एक का नाम जगमल और दूसरे का नाम देवन दास था। अकबर ने अपना एक लश्कर राजा मालदीव पर हमलावर होने के लिए रवाना किया। इस लश्कर ने मेरठ नाम के किले का मुहासरा कर लिया और किले की फसील को गिराने के लिए किले के करीब खुदाई करके इसमें बारूद भरकर फसील को उड़ाने के इंतजामात शुरू कर दिए। फसील के एक हिस्से पर बुर्ज को तबाह करने में कामयाब हो गया। इस तरह शहर की फसील के अंदर एक रास्ता बन गया था। फसील के गिरने वाले हिस्से पर मुगलों और राजपूतों के दरमियान होलनाक जंग हुई।
آخر جب لڑتے لڑتے شام ہوگی تو مغل پیچھے ہٹ گئے، راجپوت شہر کے اندر چلے گئے، لیکن راجپوتوں نے اندازہ لگا لیا کہ حملہ آور شہر کو فتح کیے بغیر نہیں جائیں گے، لہذا انہوں نے مغلوں کے لشکر سے صلح کی درخواست کی۔ مغلوں کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ اس وقت ایک شخص مرزا اشرف تھا۔ اس نے صلح کے لیے یہ شرط پیش کی کہ وہ شہر کے سرکردہ لوگ صرف اپنی سواری کے گھوڑوں کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ قلعے سے باہر نہ لے جائیں۔ حکمران طبقہ نے شرط کو منظور کر لیا، لہذا یہ لوگ قلعے سے نکل کر اپنے ٹھکانوں کو جانے لگے۔ البتہ راجہ مالدیو کے سالار دیون داس نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس نے مغلوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف اکبر کے لشکر کا سالار مرزا اشرف کو بھی اطلاع ہو چکی تھی کہ راجہ مالدیو کا سالار دیون داس مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ وہ بھی مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دیون داس جب شہر سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تب مرزا اشرف نے پوری طاقت اور قوت سے پہلے دیون داس کے حملے کو روکا۔ اس کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے دیون داس کے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں نے دیون داس کے لشکر کے آدھے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا، تب باقی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اس معرکہ میں خود دیون داس بھی بری طرح زخمی ہوا، پھر زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ اس طرح اکبر کے لشکر نے جودھ پور کے قلعے پر میرٹھ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب اکبر نے ایک لشکر اپنے سالار آدم خان اور پیر محمد کی سرکردگی میں مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا۔ مالوا کا حکمران ان دنوں باز بہادر تھا، جو ہر وقت عیش و عشرت اور شراب نوشی میں مصروف رہتا تھا۔ اپنے ارد گرد اس نے انگنت گانے والیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ یہ تھی قسط نمبر 2۔